बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। حمید نے انہیں کور کرتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ دونوں نے ہاتھ اٹھا دیے۔ اب بتاؤ کس کی لاش کہاں پڑی ہے؟ دونوں میں سے کوئی کچھ نہ بولا۔ ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ چلو مجھے دکھاؤ لاش کہاں ہے؟ حمید نے ریوالور کو جنبش دے کر کہا۔ دروازے کی طرف مڑو اور چل پڑو۔ انہوں نے بے چوں چرا تعمیل کی تھی۔ کئی کمروں سے گزرنے کے بعد وہ کچن میں پہنچے اور یہاں سچ مچ ایک لاش پڑی نظر آئی۔ کٹی ہوئی گردن سے خون بہہ بہہ کر چاروں طرف پھیل گیا تھا۔ یہ کون ہے؟ حمید نے انہیں گھور کر پوچھا۔ تم بتاؤ، ہم تو نہیں جانتے، لیکن آخر اس کھیل کے لیے میرا گھر کیوں منتخب کیا گیا؟ میں تو تمہیں بھی نہیں جانتا۔ مقتول ایک لہیم شہیم آدمی تھا۔ عمر 40 اور 50 کے درمیان رہی ہوگی۔ لباس سے ذی حیثیت معلوم ہوتا تھا۔ حمید نے لاش سے نظر ہٹا کر مالک مکان کی طرف دیکھا۔ کھیل سے کیا مراد ہے؟ اس نے چپتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ پھر یہ کیا ہے؟ 15 دن سے حویلی مقفل تھی، میں یہاں نہیں تھا۔ تم کہاں تھے؟ تم آخر ہو کون؟ مالک مکان کو پھر غصہ آ گیا۔ دفعتاً دوسرا آدمی بولا، صاحب ذرا انہیں غور سے دیکھیے، صورت کچھ جانی پہچانی سی لگتی ہے۔ ہاں میں بھی یہی سوچ رہا تھا، مالک مکان نے حمید کو گھورتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے کہ ہم ان کی تصویریں دیکھتے رہے ہیں۔ او ہو! مالک مکان اچھل پڑا۔ حمید کو غور سے دیکھتا رہا، پھر بولا، بلا شبہ وہی، میں نے پہچان لیا ہے۔ اس بار اس کے لہجے میں جوش و مسرت کی جھلکیاں ملی تھیں۔ حمید ان کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا غرایا، تو میں کون ہوں؟ اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو آپ سعد آباد کے شیر علی خان کے بھانجے ہیں۔ حمید اس سے پہلے ہی کیسے انداز میں گھورتا رہا، وہ میرے گہرے دوستوں میں سے تھے۔ مالک مکان پھر بولا، میرا نام شمشاد ہے، یہ علاقہ آپ اپنا ہی سمجھیے، لیکن میرے خدا یہ سب کیا ہے؟ حمید نے ریوالور والا ہاتھ نیچے گرا دیا۔ مگر یہ لاش؟ دوسرا آدمی ہکلایا۔ تم دونوں نے جس طرح مجھے پہچانا ہے اسی طرح اس کو بھی پہچاننے کی کوشش کرو۔ بالکل اجنبی، یقین کیجئے، شمشاد نے کہا۔ آپ شیر علی خان کے دوست ہوں گے، لیکن شاید ہم پہلے کبھی نہیں ملے۔ ان کی حویلی میں شاید ہی کوئی ایسا کمرہ ہو جہاں آپ کی تصویر موجود نہ ہو۔ کیا اس حویلی کی نگرانی کے لیے بھی آپ نے کوئی آدمی نہیں رکھا؟ قطعی غیر ضروری ہے۔ یہاں کون ہے جو ادھر آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکے؟ میں پورے علاقے کا مالک ہوں۔ کیا یہاں بالکل تنہا رہتے ہیں؟ نہیں، میرا خاندان گرمیاں پہاڑوں پر گزارتا ہے۔ آپ ان دنوں کہاں تھے؟ سعد آباد میں، وہاں بھی میرا ایک مکان ہے۔ حمید تھوڑی دیر تک خاموش رہا، پھر انہیں اپنے یہاں تک پہنچنے کا واقعہ بتفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ مجھے 100% یقین ہے کہ وہ عورت ہی تھی۔ آپ تو مجھے الف لیلا کی کوئی داستان سنا رہے ہیں جناب، شمشاد نے اسے بے اعتباری سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا آپ مجھے کوئی غیر ذمہ دار آدمی سمجھتے ہیں؟ حمید نے اسے پھر گھور کر دیکھا۔ تو پھر کیا کہوں اس کہانی پر؟ آپ اپنے بچاؤ کی فکر کیجئے جناب، حمید نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ یہ کہانی آپ کو جی بہلانے کے لیے نہیں سنائی گئی تھی۔ آپ کو اس لاش کے سلسلے میں جواب دہی کرنی پڑے گی، اور یہاں ایک ذمہ دار پولیس آفیسر کو دھوکے سے لایا گیا تھا۔ کون پولیس آفیسر؟ شمشاد ہکلایا۔ حمید نے اپنا وزٹنگ کارڈ نکال کر اس کی جانب بڑھا دیا۔ کارڈ پر نظر پڑتے ہی شمشاد کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے حمید کی طرف دیکھا اور تھوک نگل کر رہ گیا۔ تو کیا آپ شیر علی خان کے بھانجے نہیں ہیں؟ میں نے اس سے کب انکار کیا ہے؟ میرے خدا! وہ طویل سانس لے کر بولا، میری مشکل حل ہو گئی۔ آپ کا بھانجا نہیں ہوں، حمید نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ آپ غلط سمجھے، میں آپ سے کسی رعایت کا طلبگار نہیں، جو کارروائی چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن اب میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ شیر علی خان مرحوم عام حالات میں نہیں مرے، اور شاید میں بھی ایسے ہی حالات کا شکار ہونے والا ہوں۔ حمید نے دونوں کو گھورتے ہوئے کہا، میں پوری عمارت کا جائزہ لینا چاہتا ہوں۔ ضرور ضرور، شمشاد نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ اس میں 15 منٹ صرف ہوئے تھے اور عمارت کا عقبی دروازہ کھلا ہوا ملا تھا۔ حمید ان دونوں کی طرف سے مطمئن نہیں تھا، لہٰذا ان میں سے کسی کو عمارت ہی میں چھوڑنا مناسب نہ سمجھتے ہوئے انہیں بھی عقبی دروازے سے باہر نکال لے گیا۔ عمارت کی پشت پر حد نظر تک ویرانی ہی ویرانی پھیلی ہوئی تھی۔ دفعتاً شمشاد کا ساتھی ہاتھ اٹھا کر بولا، وہ رہے گاڑی کے نشانات،
इधर कोई गाड़ी आई थी। हम देखेंगे, जरूर देखेंगे, शमशाद मुस्तबाराना लहजे में बोला। वापस चलिए, हमीद ने सपाट आवाज में कहा। वो फिर अंदर आए और नशिस्त के कमरे से गुजरते हुए बरामदे में पहुंचे। हमीद की गाड़ी जहां थी वही नजर आई और इसके पीछे वाली जीप बहरहाल पहली जीप से मुख्तलिफ थी। गाड़ियों के करीब पहुंचकर हमीद ने कहा, जीप यहाँ से स्टार्ट किए बगैर इमारत की पुष्ट पर ले जाई गई होगी, वरना मैं आवाज जरूर सुनता। जी हाँ, यही हो सकता है, शमशाद पुरतफक्कर लहजे में बोला। जीप के निशानात पर चलते हुए एक बार फिर वो इमारत की पुष्ट पर पहुंच गए। हमीद की समझ में नहीं आ रहा था कि इसे क्या करना चाहिए। ये दोनों भी इसके लिए अजनबी थे। इमारत के अंदर एक लाश मौजूद थी और फरार होने वालों की जीप के निशानात बार बार दावत अमल दे रहे थे। खुद शमशाद ने कुछ देर पहले जीप के निशानात पर दौड़ लगाने की तजवीज पेश की थी, लेकिन क्या ये मुनासिब होता कि वो उस लाश को दो मुश्तबा आदमियों की तहवील में देकर खुद इस लड़की की तलाश में निकल खड़ा होता। वो सोचता रहा और फिर ये फैसला किया कि शमशाद को अपने साथ रखे और दूसरे आदमी पर लाश की निगरानी की जिम्मेदारी आयद करके वहां छोड़ जाए। कुछ देर बाद शमशाद इसके बराबर बैठा हुआ कह रहा था, निशानात अभी वाज़ा नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ देर बाद उड़ने वाली रेत में दफन हो जाएंगे। हो सकता है कुछ दूर चलने के बाद ये सिलसिला ही मुनक़ता हो जाए। जी हाँ, ये भी मुमकिन है, लेकिन मैं जानता हूँ कि इस तरफ जाने वाले कहाँ जा सकते हैं। आपने कहा था कि शेर अली खान साहब की मौत मामूली हालात में नहीं हुई थी, इसका क्या मतलब था? मैं दरअसल इसीलिए एक हफ्ते से सादाबाद में मुकीम था कि हकीकत मालूम कर सकूं। मेरा ख्याल है कि इन्हें अपनी मौत का इल्म पहले से हो गया था। आखिर किस बिना पर आपने ये राय कायम की है? जिस वक्त इन्होंने आपके हक में वसीयतनामा मुरतब किया था, मैं भी मौजूद था। वसीयतनामा मुरतब करने के 3 दिन बाद मुझे इत्तला मिली कि इनका इंतकाल हो गया। तदफीन में मेरी शिरकत नहीं हो सकी थी। क्या वो बीमार थे? हरगिज नहीं। किसी मुस्तकिल मर्ज में भी मुब्तला नहीं थे। क्या इन्होंने कभी जिंदगी से मायूसी का भी इजहार किया था? कभी नहीं। बेहद जिंदा दिल आदमी थे, किसी को मगमूम नहीं देख सकते थे। लेकिन आप इस पर तो गौर कीजिए कि कोई तंदुरुस्त आदमी अचानक वसीयतनामा मुरतब करने बैठे और 3-4 दिन में मर जाए। अमीद कुछ ना बोला। जीप आगे बढ़ती रही। कुछ देर बाद इसने पूछा, अपने वकील मिस्टर अजीज से इनके ताल्लुकात महज कारोबारी थे या कुछ और भी? दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी थे, शमशाद ने जवाब दिया। चौधरी साहब की तदफीन में किन लोगों ने हिस्सा लिया था? क्या शाहिद अजीज थे इस वक्त? इस सिलसिले में आप पूरी मालूमात चौधरी साहब के खुसूसी मुलाजिम दिलावर से हासिल कर सकेंगे। हमीद ने दफतन जीप रोक दी क्योंकि यहाँ दूसरी गाड़ी के निशानात मादूम हो गए थे। चलते रहिए, इन अतराफ में सिर्फ एक ऐसी जगह है जहाँ वो जा सकते हैं, शमशाद ने कहा। इसके अलावा दूर दूर तक रेगजार के अलावा और कुछ नहीं। जो लोग इतने चालाक हों वो इस तरह अपना सुराग नहीं छोड़ेंगे कि आप इन तक बआसानी पहुंच सकें। हो सकता है यहाँ से वो फिर पुख्ता सड़क की तरफ मुड़ गए हों। ओह, मैंने तो इस पर गौर ही नहीं किया था। मेरा ख्याल है कि हमें इस भागदौड़ से बाज रहना चाहिए। वैसे इस इलाके का पुलिस स्टेशन कहाँ है? इसके लिए हमें सड़क ही की तरफ वापस चलना पड़ेगा। जहाँ से आप बस्ती की तरफ मुड़े होंगे वहाँ से 8 मील के फासले पर है, सादाबाद की तरफ। जी हाँ, जीप वहाँ से फिर वापस हुई थी। शमशाद की हवेली के करीब पहुंचे तो इसके एक हिस्से से धुएं के कसीफ मरगूले उठते हुए दिखाई दिए। अरे ये क्या हुआ? शमशाद कहता हुआ जीप से कूदा और इमारत की तरफ दौड़ने लगा। इमारत के गिर्द बस्ती के लोग जमा थे। शमशाद और हमीद आगे पीछे इमारत के अंदर दाखिल हुए। किचन में जहाँ इन्होंने लाश देखी थी, आग लगी नजर आई। बस्ती के लोग बाल्टियों में पानी लिए आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। किचन के सामने शमशाद का साथी फर्श पर औंधा पड़ा था। शमशाद इसकी तरफ झपटा। आकिल खान, आकिल खान! वो इसे झंझोड़ झंझोड़ कर आवाजें दे रहा था। आकिल खान पर बेहोशी तारी थी और बेहोशी का सबब गालिबन सर की चोट बनी थी, जिससे खून बह बहकर फर्श पर फैल गया था। बस्ती वालों से सिर्फ इतना मालूम हो सका था कि इन्होंने इमारत से अचानक धुआं उठते देखा था और इधर दौड़े आए थे। आकिल खान इन्हें इसी हालत में बेहोश पड़ा मिला था। हमीद ने पेट्रोल की बू पहले ही महसूस कर ली थी और दौड़कर अपनी गाड़ी की तरफ गया था और इस पर यह इंकिशाफ हुआ था कि फालतू पेट्रोल के टिन गायब थे। टायरों की हवा भी किसी ने निकाल दी थी। बहरहाल आग पर काबू पा लेने के बाद हमीद किचन में दाखिल हुआ। लाश मस्क होकर नाकाबिले शनाख्त हो चुकी थी।
आग लगाने का मकसद भी शायद यही था कि लाश जलकर शनाख्त के काबिल ना रहे। आकिल खान होश में आने के बाद ये ना बता सका कि इस पर पीछे से किसने हमला किया था। 4 बजे के करीब हमीद इस इलाके के पुलिस स्टेशन से राब्ता कायम कर सका था। इसने अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई और शमशाद समेत इसकी जीप से शहर की तरफ रवाना हो गया। इमारत और अपनी गाड़ी की निगरानी के लिए 2 मुसल्लह सिपाही मुतय्यन करा दिए थे। शहर पहुंचते पहुंचते रात हो गई। फरीदी घर ही पर मौजूद था। हमीद की वापसी पर इसने हैरत जाहिर की थी, लेकिन जब इसकी कहानी सुनी तो तवील सांस लेकर बोला, तुम्हारा मुकद्दर। और फिर शमशाद को घूरने लगा था। शमशाद गड़बड़ाकर दूसरी तरफ देखने लगा। सच्ची बात शमशाद साहब, फरीदी आहिस्ता से बोला, मम्मा मैंने जो कुछ बताया है इसमें जर्रा बराबर भी झूठ नहीं। अच्छा तो फिर सादाबाद में अपनी मसरूफियात के बारे में बताइए। काका कुछ भी नहीं, बस इतनी सी बात है कि मैं शेर अली मरहूम के बारे में लोगों से पूछगछ कर रहा था। वजह पहले ही बता चुका हूँ। कुदरती बात है, कोई अच्छा भला शख्स वसीयतनामा मुरतब करके 3 दिन बाद मर जाए तो क्या कहेंगे? ओहो, आप गालिबन ये कहना चाहते हैं कि जिसके हक में वसीयतनामा मुरतब किया गया इसने जल्द अज जल्द जायदाद हासिल करने के लिए। नहीं जनाब, शमशाद ने हाथ उठाकर एहतजाजन कहा, मैं तो तसव्वुर भी नहीं कर सकता, हरगिज नहीं। खुदा की पनाह, शेर अली मरहूम ने कभी ये बात जाहिर नहीं की थी कि इनका वारिस कोई पुलिस ऑफिसर है, इसीलिए मैं सच्ची बात जानना चाहता हूँ। फरीदी इसकी आंखों में देखता हुआ बोला, जो कुछ मैं पहले कह चुका हूँ इसके अलावा और कोई बात मेरे इल्म में नहीं है। कोई और ऐसा फर्द जो उसके तरके का दावेदार हो सके? जी नहीं, मुझसे तो वो सिर्फ अपने एक भांजे साजिद हमीद का जिक्र किया करते थे। लेकिन अब सवाल ये है। फरीदी कुछ कहते कहते रुक गया। इसकी आंखों में पल भर के लिए अजीब सी चमक नजर आई थी और वो उठ खड़ा हुआ था। एडवोकेट शाहिद अजीज, इसने हमीद की तरफ देखकर कहा। फिर शमशाद से बोला, आप भी हमारे साथ चलेंगे? जरूर जरूर, वो मुझसे बखूबी वाकिफ है। कुछ देर बाद फरीदी की लंकन इसी इमारत के सामने रुकी जिसमें वकील का फ्लैट था। हमीद की रहनुमाई में वो फ्लैट नंबर 42 तक पहुंचे, जो तीसरी मंजिल पर वाक़या था। हमीद ही ने कॉल बेल का बटन दबाया। थोड़े थोड़े वक्फे से दबाता ही रहा, लेकिन दरवाजा ना खुला। फरीदी की नजर रेस्ट वॉच पर थी। 2 मिनट गुजर जाने के बाद इसने बराबर वाले फ्लैट की कॉल बेल का बटन दबाया। दरवाजा खुलने में देर नहीं लगी थी। फरमाइए जनाब, एक बूढ़े आदमी ने फरीदी को नीचे से ऊपर तक देखते हुए कहा। मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। ओह, तो फिर जनाब, बूढ़ा कुछ नर्वस सा नजर आने लगा था। बराबर वाले फ्लैट की घंटी देर से बजाई जा रही है, लेकिन जवाब नहीं मिलता। तो फिर मैं इस सिलसिले में क्या कर सकूंगा जनाब? आपकी मौजूदगी में हम अंदर दाखिल होना चाहते हैं। काका कोई गड़बड़ जनाब? जरूरी नहीं है, लेकिन जब वो अंदर पहुंचे तो गड़बड़ ही नजर आई। दरवाजा अंदर से बोल्ट नहीं किया गया था, हैंडल घुमाते ही खुल गया था। सामने फर्श पर एक आदमी औंधा पड़ा दिखाई दिया। शबे ख्वाबी का लिबास और गाउन जिस्म पर मौजूद था। ओहो! हमीद तेजी से आगे बढ़ा। ठहरो, फरीदी हाथ उठाकर बोला और खुद आगे बढ़कर इस पर झुक पड़ा। इसका चेहरा दूसरी तरफ था। दरवाजे के करीब से इसे शनाख्त नहीं किया जा सकता था। दफतन फरीदी ने मुड़कर हमीद को करीब आने का इशारा किया। ओह! हमीद चेहरे पर नजर पड़ते ही ठटक गया। यही है? फरीदी ने पूछा। हमीद ने सर को असबाती जुम्बिश दी। मर चुका है। फरीदी ने दूसरों की तरफ मुड़कर कहा। काका कौन है? शमशाद ने थूक निकल कर पूछा। शाहिद अजीज। पड़ोसी और शमशाद दोनों ही तेजी से आगे बढ़े थे। हमीद ने दोनों की आंखों में हैरत के आसार देखे। दफतन शमशाद ने कहा, ये शाहिद अजीज नहीं है क्या? हमीद सीधा होकर उसे घूरने लगा। जी हाँ, ये वकील साहब नहीं हैं, बूढ़े पड़ोसी ने कपकपाती हुई आवाज में कहा। अब फरीदी और हमीद एक दूसरे को घूरे जा रहे थे। ये डीआईजी साहब भी। हमीद बात पूरी नहीं कर पाया था कि फरीदी ने इसे खामोश रहने का इशारा किया। फिर ये कौन है? फरीदी बूढ़े की तरफ मुड़ा। बूढ़े ने लाइल्मी जाहिर की। फरीदी ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और इन्हें वहीं छोड़कर दूसरे कमरे में चला गया। हमीद इस शख्स की लाश को घूरे जा रहा था जिसने डीआईजी के सामने भी खुद को एडवोकेट शाहिद अजीज जाहिर किया था। शायद इसकी मौत दम घुटने की वजह से वाकया हुई थी। चेहरे पर ऐसे ही आसार पाए जाते थे। दफतन हमीद ने बूढ़े से पूछा, शाहिद अजीज इस फ्लैट में कब से मुकीम था? मेरा ख्याल है कि पिछले 6 माह से। इस आदमी को आपने पहले कभी यहाँ नहीं देखा? हमीद ने लाश की तरफ देखकर पूछा। अपनी यादाश्त में तो कभी नहीं।
आखिर वकील साहब गए कहाँ? इनसे मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। इतने में फरीदी वापस आ गया। यहाँ कहीं फोन भी है? इसने बूढ़े से पूछा। फोन तो है यहाँ, गालिबन आप बेडरूम ही में थे। फिलहाल यहाँ का फोन इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो फिर मेरे फ्लैट में तशरीफ ले चलिए। फरीदी इसके साथ चला गया। हामिद और शमशाद तन्हा रह गए। आखिर ये सब क्या हो रहा है कप्तान साहब? शमशाद ने भराई हुई आवाज में पूछा। क्या आप मुझे शाहिद अजीज का हुलिया बताएंगे? हामिद खुद सवाल कर बैठा। हुलिया हुलिया हुलिया, खड़ा खड़ा नक्शा, खूबसूरत सी स्याह दाढ़ी, रेमलेस फ्रेम की ऐनक लगाता था, खुशलिबास आदमी है, जामा जेबी में भी अपना जवाब नहीं रखता। लेकिन ये आदमी का क्या मेरा मतलब है कि आप दोनों की गुफ्तगू से मैंने अंदाजा लगाया है कि शायद ये आदमी। गैर जरूरी बात नहीं, हमीद ने हाथ उठाकर खुश्क लहजे में कहा। शमशाद के चेहरे पर नागवारी के आसार नजर आए और वो दूसरी तरफ देखने लगा। फिर कुछ देर बाद महकमा सुराग रसानी के मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन वहां पहुंच गए थे और लाश से मुतालिक जरूरी कार्रवाई शुरू हो गई थी। हमीद फरीदी के साथ दूसरे कमरे में आया। यहाँ एक बड़ी मिसरी, 2 कुर्सियों, एक छोटी मेज और एक बुक शेल्फ के अलावा और कुछ नहीं था। हमीद किताबों की अलमारी के करीब जा खड़ा हुआ और इसे ये देखकर हैरत हुई कि इस शेल्फ में कानून की एक भी किताब नहीं थी। दफतन इसने फरीदी को कहते सुना, गालिबन तुम कानून की कोई किताब तलाश कर रहे हो। कुदरती बात है, हमीद ने जवाब दिया। फरीदी फिर कुछ नहीं बोला था। हमीद अलमारी का जायजा लेते लेते दफतन चौंक पड़ा और मुड़कर फरीदी की तरफ देखा, जो बिस्तर पर झुका हुआ कुछ देख रहा था। हमीद अलमारी के पास से हटकर इसके करीब पहुंचा। फरीदी बदसतूर झुका हुआ बोला, कुछ किताबें अलमारी में उल्टी भी लगी हुई हैं। जी हाँ, मैं यही बताना चाहता था। फरीदी सीधा खड़ा होकर चंद लम्हे इसकी आंखों में देखता रहा, फिर बोला, कहीं इंतशार के आसार नहीं मिलते। फिर भी कत्ल के बाद यहाँ कोई चीज जरूर तलाश की गई है। अलमारी में उल्टी किताबें जल्दबाजी का नतीजा है। क्यों ना तुम अलमारी दोबारा खाली कर दो, यानी किताबें फर्श पर डाल दूं? हाँ। हमीद ने इसके मशवरे पर अमल करने में देर नहीं लगाई थी। किताबें शेल्फ से निकाल निकाल कर ढेर करता रहा। इस दौरान में फरीदी ने बिस्तर उलट दिया था और गधे के नीचे बरामद होने वाली किसी चीज को बहुत गौर से देखे जा रहा था। शेल्फ भी खाली हो गई, इसमें अब कुछ भी नहीं था। फरीदी ने जो चीज बिस्तर के नीचे से उठाई थी, हमीद के करीब पहुंचने से कबल ही जेब में डाल ली और शेल्फ की तरफ मुतवज्जा हो गया। कुछ भी नहीं है, हमीद ने मायूसाना अंदाज में कहा। फरीदी कुछ कहने ही वाला था कि दूसरे कमरे से अजीब आवाजें आईं और फरीदी का एक मातहत तेजी से कमरे में दाखिल हुआ। इसके हाथ में स्याह रंग की एक मसनूई दाढ़ी थी। अगर कहानी अच्छी लगी हो और आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो मेहरबानी फरमाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले कहानी और नावलों से लुत्फ अंदोज होते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।